السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ آن لائن محو گفتگو ہوں گے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، خادم اعلیٰ پنجاب، محترم جناب شہباز شریف صاحب۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس وقت اپنے اس خادم کو اپنے پروگرام میں بلایا ہے جبکہ پاکستان مسائلستان بن چکا ہے اور یہاں کا ہر مسئلہ پکار پکار کے یہ کہہ رہا ہے میرا حلیف تیرا حلیف، شہباز شریف، شہباز شریف۔ جنید صاحب، پانی کا ہر وہ قطرہ جو غریب کی چھت میں سے ٹپک رہا ہے، اس ٹپکنے والے ہر قطرے سے یہ آواز آ رہی ہے، آواز دے کہاں ہے دنیا میری جہاں ہے۔ کیا بات ہے میاں صاحب، شمشاد بیگم والی آواز کٹی تھی۔ موری صاحب، آپ نے دیکھا نہیں، میں نے ناک پہ انگلی رکھی ہوئی تھی۔ یہ جس طرح غریب آدمی چھت کے ٹپکنے کو بند کرنے کے لیے سراخوں پہ انگلی رکھتا ہے، اسی طرح غریب کی آواز بلند کرنے کے لیے شہباز شریف کو ناک پہ انگلی رکھنی پڑتی ہے۔ اور میں یہاں پہ برملا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ناک پہ انگلی رکھنے سے باز نہیں آؤں گا جب تک غریب کو ریلیف نہیں ملے گا۔ اچھا میاں صاحب، ایک طرف آپ لاہور نیب کے آفس جانے سے کترا رہے ہیں، دوسری طرف آپ کراچی پہنچ گئے۔ جنید صاحب، آپ کو دیکھ کے مجھے ایک بزرگ کی نصیحت یاد آ گئی۔ ایک بزرگ نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا دھیان سے رہنا، چٹا بندہ بھی منحوس ہو سکتا ہے۔ حد کر رہے ہیں آپ، حد کر رہے ہیں جنید صاحب۔ آپ نے میرے اتنے لمبے چوڑے دورے کو ایک فکرے سے ملیا میٹ کر دیا ہے۔ میرے کراچی کے دورے کا مقصد غریب کے زخم پہ مرہم لگانا تھا، اور جس نیب کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں کیوں جاؤں میں جنید صاحب؟ وہ تو نیب والے جب فارغ بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں چلو یار شہباز شریف ہی منگوا لے۔ وہ بالکل اسی طرح جیسے امیروں کے بچے فارغ ہوتے ہیں تو وہ پیزا منگوا لیتے ہیں۔ جنید صاحب، میں پیزے کی طرح ان کو شہباز شریف نکلنے نہیں دوں گا۔ میں آپ کو یہ بات اللہ کے فضل سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب تک پاکستان کا ہر غریب خوشحال نہیں ہوگا میں پیزا نہیں منگواؤں گا۔ میرا مطلب ہے کہ میں ان کو شہباز شریف نکلنے نہیں دوں گا۔ اچھا میاں صاحب، بعض لوگ کہتے ہیں آپ کراچی گئے تھے آصف زرداری صاحب کو اپنے وعدے کے مطابق سڑکوں پہ گھسیٹنے کے لیے، وہ کیا معاملہ ہے؟ ویسے سنا تو یہ تھا کہ مردہ جدوں ہی بولتا ہے کفن ہی پاڑتا ہے، مگر آج یہ ثابت ہوا ہے کہ زندہ اینکر بھی کفن پاڑتا ہے۔ حضور سوال کی ہے، سوال کرو تسی تے شرارت کرن دے۔ جنید صاحب، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ ایک دانشور آدمی ہیں۔ کراچی کی سڑکوں کی جو حالت ہے، جس طرح پانی اور کیچڑ ہے ہر سڑک پہ، آپ خود بتائیں زرداری کا سیٹا بھی آ سکتا ہے؟ میں اپنی بات سے مکرتا نہیں ہوں جنید صاحب۔ میں نے زرداری کو گھسیٹنے کی بات کی تھی، میں نے اس کے کپڑے گندے کرنے کی بات نہیں تھی کی۔ اور جنید صاحب، میں یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ میں نے اس اپنے ڈائلاگ پہ زرداری صاحب سے معافی بھی مانگ لی ہوئی ہے۔ اور ویسے بھی جنید صاحب، جب ایک عوامی لیڈر سٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے، عوام کے سامنے خطاب کر رہا ہوتا ہے، تو جوش خطابت میں اس کے منہ سے پٹاخ پٹاخ کی آواز نکل رہی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح
जैसे मकई का भुट्टा जब आग में होता है तो उसके हर दाने से पटाख पटाख की आवाज निकल रही होती है। लेकिन सर लीडर होता है, मकई का भुट्टा नहीं होता। पुट्टे तो सारे दाने लत जाना ते वो तेरे वर्गा हो जाता है। बड़ा तेरा पढ़े लिखे चूहे वर्गा मुंह है। मुझे सिर्फ एंकर को हैंडल करने दो, उसके साथ मिलके तो ये दानिश बखेरने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं मियां साहब, रिलैक्स हो जाए। और मियां साहब नु दस रहे हैं लीडर और तू मियां साहब नु छड़ कोगे तेरे मुंह रिलैक्स बहुत बुरा लगेगा। तू रिलैक्स कहने ले बिल्कुल रिलैक्स नहीं से। वैसे भी तेरा रिलैक्स नाल की ताल्लुक है? तेनू तो थकावट हुई होवे ते तू जमीन ते लेट के थकावट लाना है। देखो ना मियां साहब की गल च बोलदे ना फिर तुहानू जुगतां हुंदियां ने। मेरे नाल देखो मैनूं जुगत हो भी नहीं सकदी, फिर भी मियां साहब की गल च मैं नहीं बोलदा। ये गौरी साहब, ये आपकी मेहरबानी है, मगर ये जो जुगत हो भी नहीं सकती वाली जो आपने बात की है, जी जी जी, ये आपने सेल्फ डिफेंस किया है जी। आपके मुंह पे तो जुगत इस तरह दौड़ती है जैसे सुबह सुबह मुर्गे को दड़बे में से निकाला जाए तो वो सेहन में दौड़ता है। जिस तरह खुरली में पट्टे डाले जाए तो बकरा रस्सा तोड़ा के दौड़ता है। जैसे शादी पे रोटी खुले तो बाराती स्टैंड की तरफ दौड़ते हैं। मियां साहब मैनूं पहली मिसाल ते समझ आ गई सी, बस करो। अच्छा मियां साहब, कराची में दौरे के दौरान एक अखबार नवीस ने आपसे सवाल किया कि मसाइल इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, अपोजिशन आखिर कब फाल होगी? तो आपने जवाब में कहा कि मैं फाल ही हूं, मैं यहाँ कौन सा फ्रूट बेचने आया हूं। जुनैद साहब, ये मैंने हकीकत कहा है, ये जुगत नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ मियां साहब आप फरमा रहे हैं कि मैं कराची में मुतासरीन के जख्मों पे मरहम रखने के लिए गया हूं। बिल्कुल बिल्कुल जुनैद साहब, मगर मरहम रखने में कितना को टाइम लगता है? उसके बाद अगर फ्लाइट लेट हो और अपोजिशन के पास वक्त हो तो वो फाल भी ना हो। अच्छा मियां साहब, बाज खबरों में ये सुनने को मिल रहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब अपने वादे के मुताबिक वतन वापस ना आए तो गारंटर तो आप थे, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। असीं ते सुन ही नहीं सकदे। ये सही पूछे थे, मैं भी नहीं सुन सकता। ये जवाब तो देना। जुनैद साहब, देखे ये सरासर नाइंसाफी है, ये जुल्म है, ये धौंस है। आप देखें ये अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते तो मेरी क्या जिम्मेदारी हो सकती है? देखिए, ये तो आपने सुना है कि निके भरा दी लड़ाई हो जाए तो वड्डा भरा आ जाता है। ये आपने कभी नहीं सुना होगा कि वड्डे भरा दी लड़ाई हो जाए तो निका भरा आ जाता है। और वैसे भी जुनैद साहब, बड़ा भाई तो छोटे को कह सकता है कि चलो घर वापस चलो। छोटा हम कैसे बड़े को कहे कि चलो जी वापस चलो। मियां साहब आप क्या कह रहे हैं? गारंटी है आपकी? ओ भाई, मैं सियासतदान हूं, कोई चाइना का मोबाइल नहीं हूं। देखिए, मैं पहले भी कहता था और आज भी कहता हूं कि इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब जिस दिन सेहतयाब हो गए इंशाल्लाह वो वापस आएंगे। ये मैं लिख के देने को तैयार हूं। वो वापस आएंगे इंशाल्लाह और पाकिस्तान की 44 करोड़ आवाम उनका इस्तकबाल करेगी। 44 करोड़ या 22 करोड़ सर? जब वो वापस आएंगे उस वक्त तक 44 करोड़ हो गई होगी। इसका मतलब है कि एक लंबे अरसे तक उनकी वापसी का कोई प्लान नहीं है। नहीं जुनैद साहब, इसका मतलब ये है कि ये पीटीआई के दौर में आबादी भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। मियां साहब, आबादी भी बढ़ रही है और महंगाई भी बढ़ रही है। जी जुनैद साहब, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है आपका ये दोंदा दानिश्वर। महंगाई का तो ये आलम है कि गरीब की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। बिजली का बिल इतना बढ़ गया है कि बिल खुद बिल बिला उठा है। आप बगैर प्लास के
बिल पकड़े तो बिल खुद करंट मारता है। जुनैद साहब, दालें इतनी महंगी हो गई हैं कि गरीब आदमी हंडिया पानी से भर लेता है और दाल बीच में इतनी सी फेंकता है। दाल बेचारी चीख रही होती है कि मुझे पका रहे हैं या मुझे डोब के मार रहे हैं। अदरक, जुनैद साहब, अदरक देखें 600 रुपए किलो अदरक, ये जुल्म नहीं तो और क्या है। और फिर ऊपर से देखें आप 600 रुपए किलो खरीदा हुआ अदरक, आप गौर से देखें कोई भी सीधा नहीं है, कोई इधर को निकला हुआ है, कोई इधर को निकला हुआ है, कोई इधर को निकला हुआ है। खुदा के वास्ते गरीब का कुछ तो ख्याल कर ले। 600 रुपए किलो बेचना है तो सीधा करके तो बेचे। पेट्रोल जुनैद साहब, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि जब पेट्रोल पंप वाला पूछता है कि कितना पा दिया, मोटरसाइकिल वाला कहता पेट्रोल रहने दे, बस टैंकी से कपड़ा मार दे। और जुनैद साहब, जुल्म की हद है कि ये पेट्रोल डाले बगैर भी टैंकी के कपड़ा मारने का भी 10 रुपए वसूल करते हैं। बंदा इनसे पूछे, और पेट्रोल ही नहीं पाया थे 10 रुपए का दे भाई। सड़कें सारी बर्बाद हो चुकी है जुनैद साहब। जब गरीब आदमी खड्डों में से गुजरता हुआ घर पहुंचता है तो उस बेचारे को अपनी साइकिल के दबाने पड़ते हैं। मियां साहब, सिर्फ चिकन बहुत सस्ता हुआ है। गोगा जी, ये वो चिकन है जो मुर्गा हमारे दौर में अंडे से निकला था और ये इनके दौर में बिक रहा है। सिर्फ वो सस्ता है, सिर्फ वो सस्ता है। इनके दौर के अंडे में से निकले हुए मुर्गे जरा आप रेट पूछ के देखें। दुनिया में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। 70 करोड़ डॉलर इनको मदद मिल चुकी है या कर्ज मिल चुका है कराची में सेवरेज का निजाम बेहतर बनाने के लिए। ये मामूली रकम नहीं है। यार जुनैद, हम मुहर्रम की वजह से शो नहीं कर पाए और ये अब चूंकि हमारा पहला शो है उसके बाद, और सबसे अहम जो चीज है वो इस वक्त कराची का मसला है। कराची में जो हमारे बहन भाई रहते हैं, सबके रिश्तेदार दोस्त अहबाब हैं। मैंने तो जहां जहां पे राब्ता किया है, लोग बेचारे बड़े परेशान, बड़ी अजियत से दो चार लोग जो है अच्छे इलाकों में की तखसीस भी नहीं रही। गरीब इलाके, अमीर इलाके, वही मैं कहने लगा हूं कि जो तगड़े इलाकों में रहते हैं लोग, वो भी बेचारे कह रहे हैं कि बत्ती कोई नहीं है। 90% इलाकों में कराची में बिजली पानी वगैरह का, ये टेलीफोन कनेक्शन का इतना स्यापा पड़ा रहा है कि अस्तगफिरुल्लाह। बिजली आए तो मुसीबत, ना आए तो मुसीबत। देखो ना, बिजली की वजह से जो करंट पड़ने से या दीगर जो छतें वगैरह गिरने से जो वहां पे लोग मौत के मुंह में चले गए, उनकी तादाद जो है वो 100-125 से तजावज कर रहे हैं। देखो ना यार, एक जान चली जाए ना इंसान की तो मुल्कों के अंदर वक्त पड़ जाया करते हैं, तो 100 बंदा जो है वो बेचारा हलाक हो गया है और किसी को पता ही नहीं। अब तक 570 मिलीलीटर बारिश हो चुकी है और ज्यादा जो तशवीश की बात है वो ये है कि महकमा मौसमियात ये प्रिडिक्ट कर रहा है, इस खदशे का इजहार कर रहा है कि मॉनसून का एक और स्पेल भी कराची के शहरियों के लिए अजाब का बायस बन सकता है। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए अब ये अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह पाक रहमत रुक जाए। और अल्लाह नहीं करना है, जो करना है बंदों ने जो किया है वो तो कराची में सबके सामने एक मतलब रफ आइडिया ये है कि 70 अरब रुपए से ज्यादा का माली नुकसान हो चुका है। कम से कम 15,000 गाड़ियां, मोटरसाइकिलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। और सबसे खतरनाक बात ये है कि 5 से 7 हजार घर ऐसे हैं जो रहने के काबिल नहीं रहे। जो रहने के काबिल इसलिए नहीं रहे कि बारिश वहां उनकी बुनियादों में पानी, बारिश का पानी चला गया और वो खाली करने पड़ेंगे। वो किसी भी लम्हे जमीन बोस हो सकते हैं। अब वो 5-7 हजार जो घर रहे उनकी तामीर कैसे होगी? कई मुखय्यर लोग सामने आए हैं, लेकिन मुखय्यर लोगों के सिर्फ बस की बात नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ इलाकों में जाके मुखय्यर लोग खुद फंसे, डिफेंस में खुद फंसे, मुखय्यर लोग नहीं, मुखय्यर लोग पूरे मुल्क में फैले हुए हैं और मुल्क के दीगर हिस्सों से लोग कराची के शहरियों की मदद जारी है। उसमें कई बड़े बड़े इदारे मगर उस वक्त तक लाइन सीधी नहीं होगी, उस वक्त हालात ठीक नहीं हो सकते जब तक हम
ختم نہیں ہوگا. اچھا اب یہ دیکھو نا, اب یہ اس میں ایک سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے. اب آپ ٹوپی ادھر سے اٹھا کے اس کے ساتھ رکھ دیں, اس سے بھئی سیدھی بات ہے کہ کراچی میں 2 ہی ادارے ہیں نا, ایک سندھ حکومت ہے اور ایک ضلعی حکومت ہے. ضلعی حکومت کا ہونا یا نہ ہونا اس وقت ایک برابر ہے, بچہ بچہ جانتا ہے. تو پھر پچھلے کئی دہائیوں سے یہ ذمہ داری جو ہے یہ صوبائی حکومت کی تھی نا. یہ سر زیادتی ہے, شہریوں کے ساتھ بہت زیادتی ہے, اور شہریوں کے ساتھ زیادتی کے ظلم ہے یار, ظلم ہے. ان لوگوں نے اگر ضلعی حکومت کی اگر طاقت نہیں ہے تو وہ بھائی صاحب جڑے کاغذ سٹ کے ڈرامہ کرن رہے ہیں, ان کو چاہیے تھا استعفیٰ دے دیتے. جس بندے کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہو, کہے لو بھائی جی اپنا کام میں گھر جا رہا ہوں. استعفیٰ دینے کا رواج یا اہمیت ہمارے ہاں جیسا تک ہے وہ سب کو پتہ ہی ہے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ جو سندھ کی صوبائی حکومت ہے, مطلب پچھلے یار 12 برسوں کے دوران 70 کروڑ ڈالر, روپے نہیں ڈالر, 70 کروڑ ڈالر ان کو مدد مل چکی ہے یا قرض مل چکا ہے کراچی میں سیوریج کا نظام بہتر بنانے کے لیے. یہ معمولی رقم نہیں ہے. 70 کروڑ ڈالر سے آپ کئی کچھ کر سکتے ہیں. اور ابھی 2 دن پہلے جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے ورلڈ بینک سے 3.5 کروڑ ڈالر مزید مانگ لیے ہیں. اور ہم کئی بار اپنے پروگرام میں 1 بار نہیں 2 بار نہیں, میرا خیال ہے 100 مرتبہ اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ کراچی میں جتنا جب بھی سیلاب آتا ہے یا اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ کراچی کے ندی نالوں پر قبضہ ہو چکا ہے. یہی میں کہنے لگا تھا کہ جدھر سے پانی نکلنا ہوتا ہے, جدھر سے یہ فالتو جو گند مند ہے جانا ہوتا ہے, ان پہ تو بلڈنگیں بن گئی ہوئی ہیں, بڑے بڑے تگڑے سوسائٹیوں نے وہ قبضے کر لیے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ کئی پلازے کئی رہائشیں بن چکی ہیں. اب اگر جتنی بھی تجاوزات ہیں جن پہ قبضہ کیا ہوا ہے لوگوں نے, اس کو اگر گرانے کے لیے گورنمنٹ نکلے گی یا کوئی بھی ادارہ نکلے گا تو لوگ وہاں پہ اور خواتین وہاں پہ آگے بلڈوزروں کے کھڑے ہو کے چیخو پکار شروع کر دیں گی اور کہیں گی جی کہ ہم غریب ہیں, پہلے ہمیں کوئی مکان دیں پھر ہم یہاں سے. یار آپ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے بھائی. عزیزی بھائی جان, آپ یہ بات نوٹ فرما لیں کہ جب تک ان ندی نالوں سے ناجائز تجاوزات ختم نہ کی گئیں اور دوسرا کوئی حل نہیں ہے اس صورتحال کے اعادے سے بچنے کے لیے. دوبارہ ایسی صورتحال سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اور کچھ نہیں تو کراچی کے جو 7 بڑے نالے ہیں ان کی صفائی تو انڈسپینسبل ہے, انیویٹیبل ہے, ناگزیر ہے. یار آج سے کم و بیش 30 برس پہلے جو تھے یہ جو ندی نالوں کی جو مجموعی چوڑائی تھی یہ 70 فٹ تھی, آج یہ کم ہو کے 20 فٹ رہ گئی ہے, اور وہ 20 فٹ میں سے بھی 60% پر قبضہ ہوا ہے. یعنی آج کی جو تازہ ترین تحقیق جو ہے میں اپنے جو کراچی بیورو کی مدد سے ہم نے مرتب کی ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں, آپ کے کانوں میں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا. لو جی گوری صاحب تیار ہو جائے جی. یار سارے میں کرنا ہی دھواں نکل گا, میرے کلے نہ تھوڑی. میں سب کی بات کر رہا ہوں. نہیں, آپ کا دھواں زیادہ دھواں ہوتا ہے. دیکھو کہ شیرشاہ نالے پر لیاری ندی سے لے کے اردو بازار تک 80% جو نالے ہیں ان پر قبضہ ہے. اسی طرح یونیورسٹی روڈ پر سونگل روڈ نالے پر 70% قبضہ ہے. اسی طرح رنچھوڑ لائن سے مائی کولاچی تک جو ہے وہ سٹی نالے پر 70% قبضہ ہے. نیو کراچی ہزارہ روڈ نالے پر 60% قبضہ ہے. پہلوان گوڑ نالے پر 50% قبضہ ہے. اس طرح 13.5 کلومیٹر طویل جو گجر نالہ ہے کراچی کا جو مشہور نالہ ہے وہاں پر 10,000 سے زیادہ گھر بنے ہوئے ہیں بھائی جان. دیکھو نا ذرا, تو آپ گرانے کے لیے نکلے کوئی بھی, تم دیکھو کس طرح بد دعائیں اور کس طرح حکومت کے خلاف لوگ بولیں گے, اور یہ کسی کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ بھائی انہوں لوگوں نے قبضے کیے. اب کہتے یہ ہیں جی کہ اب انہوں نے بنا لیا ہوا ہے, ان کا کچھ کریں. اور پھر دوسری بات میرا مطلب ہے ایک آدمی نے اگر غلط کام کیا ہوا ہے, اگر کوئی 10 سال بعد 20 سال بعد بھی اس کا خیال کر رہا ہے تو وہ کرے. اچھا, ایک جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی ہم نے قبضہ نہیں کیا, ہم نے تو جائز طریقے سے کاغذات دیکھ کے خریدا ہے. اچھا, یہ گھر, یہ پلازا, یہ جتنے بھی اپارٹمنٹس ہیں ہم نے تو خریدے ہیں, جس نے قبضہ کیا اس کو پکڑا جائے. اب کہاں سے یہ نہیں کہ مرغی پہلے یا ویسے جنید میں معافی چاہتا ہوں, کبھی عدالتیں یہ بھی تو کریں نا کہ
کہ جو جعلی کاغذات بنا کے دینے والے ہیں وہ بے شک ریٹائر ہو گئے, قبروں سے نکال کے ان کو سزائیں دیں. کیوں یہ ہوتا ہے یار؟ کیوں ایک غریب آدمی سے تم لوگ پیسے لے کے اس کو جعلی کاغذ بنا کے پلاٹ دے دیں؟ یہ سزا بھی ہونی چاہیے, اس کا کوئی عبرت ناک قسم کا نا جی فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو. ابھی تک تو کراچی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو 250 بندے کی ہلاکت ہے بے گناہ اور بیچارے معصوم لوگوں کی جو وہاں پہ مزدوری کر رہے تھے, ان کو جو ہلاک کیا گیا ہے اس ہولناک طریقے سے, اس کی بھی ختم ہوتا ہے. یہ بھی پتا کرنا چاہیے ناجائز تجاوزات کے علاوہ کہ $70 کروڑ گئے کہاں, لگے کہاں. 326 ارب روپے کا بجٹ جو کراچی کے ندی نالوں کی صفائی کے لیے رکھا گیا تھا وہ کہاں گیا؟ وہ ایک اس کی جھلک تو ہم نے کل دیکھ لی ہے نا. سندھ حکومت کی ایک عام شخصیت کے گھر کے جو بیڈ ہے وہ سونے کے بنے ہوئے ہیں, اور پھر وہ کہتا ہے کہ میرے ابو کی قبر کا ٹرائل کیا جا رہا ہے. اندازہ کریں ان کے جواز سنے آگے سے. بات یہ جو بنیادی کام ہے, بالکل بنیادی کا. اب دیکھیں لاہور میں کسی کی بھی حکومت ہو, پرویز الہی کا یہ تخت لاہور پہ پرویز الہی کا راج ہو, شہباز شریف کا, ایون بزدار صاحب کا ہو, ایک کام باقاعدگی سے ہوتا ہے کہ مونسون کی آمد سے پہلے ندی نالوں کی اور سیوریج کی صفائی ضرور کی جاتی ہے. ایون یہ جو آپ کی کیمپس والی نہر ہے یہاں پہ باقاعدگی سے بھل صفائی کا کام ہوتا ہے. یہ 2-3 بنیادی کام ہے. جس مرضی کی حکومت ہو وہ کام ضرور ہوتا ہے, جس کی وجہ سے چلیں 1-1.5 دن تک لاہور کے شہریوں کو بھی بڑی شدید بارش کی صورت میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن سیلابی صورت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. لیکن یہاں پہ کراچی میں 13 برس سے جو سالانہ صفائی ہے وہ بھی نہیں ہو رہی. 13 برس گزر گئے ہیں, ندی نالوں کی جو سالانہ صفائی ہونی چاہیے آٹومیٹکلی ہونی چاہیے. وہ نالا سر ہم نے ٹی وی پہ دیکھا اور لگ رہا تھا کہ واقعی اتنے سالوں کی صفائی. اور میں ایمان سے اس بات سے بھی بڑا ہی دکھی ہوتا ہوں کسی وقت کہ یہ جو سندھ کے لوگ ہیں یہ کتنا پیار کرنے والے ہیں, ان کے ساتھ کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے کیا سلوک ہو رہا ہے, اور اس کے باوجود وہ لوگ بیچارے ووٹ دینے ان کو نکلتے ہیں. وہ آج تک آپ اندرون سندھ دیکھیں نا, آج تک وہاں پہ جی اے بھٹو کا نعرہ لگتا ہے, آج تک لگتا ہے. اور کسی ببر شیر نے یہ نہیں خیال کیا کہ یہ ہمیں اس قدر محبت دے رہے ہیں, ہم ان کو کچھ تو لوٹائیں, ان کا کچھ تو ایسا رسپانس دیں کہ یہ لوگ بیچارے یہ اپنی وفا کا, اپنی کرنے والی محبت کا تھوڑا بہت تو مولا حاصل کر. عزیزی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم, جی اے بھٹو. دیکھو یار نعرے لالا کے اے حال ہو گیا. ناظرین یہاں ملے نا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. افریقہ کے بہت سے ملکوں میں لوگوں نے, انسانی آبادیوں نے ہاتھیوں کے حملوں سے بچنے کے لیے اپنی بستیوں کے ارد گرد شہد کے چھتے لگائے ہوئے ہیں. جی تو اڈا تے مکھی نہ رٹا مکا. اچھا پیارے بچوں, آج ہماری زولوجی کی کلاس ہے اور اس میں ایک ایسا ٹاپک ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو بہت زیادہ وسیع ہے. اگر ہم اس پہ میرا خیال ہے کم از کم 2000 پیریڈز بھی رکھیں نا تو ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. وہ رکھ لیں سر, رکھ لیں, ہم کا پڑھائی سے بھاگتے ہیں. محنت تو آپ کے چہرے سے یہاں ہے, اور اتنا بڑا چہرہ ہے تو کتنی بڑی محنت ہوگی. سر اتنا بڑا دابڑا اٹھا لیتا ہوں میں. تو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں شہد کی مکھی, شہد اور شہد کی مکھی کا چھتا. یہ اب کہیں نظر نہیں آتا. ہاں, یہ پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ شہد کی مکھی اور شہد پہ لکھا گیا ہے نہ ہی کسی اور انسیکٹ پہ اتنا لکھا گیا ہے, نہ اتنی زیادہ ریسرچ ہوئی ہے. اور یہ جو شہد کا چھتا ہوتا ہے نہ کسی اور چیز پر اس سے زیادہ لکھا گیا ہے. اور چھتا ہے وہ انجینئرنگ کے جو اللہ تعالیٰ کی انجینئرنگ ہے اس کے جو 5 شاہکار ہیں ان میں سے یہ پہلے نمبر پہ خوبصورتی کے ساتھ, یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صنعیت ہے ایٹ اٹس بیسٹ. اچھا بہت زیادہ ہم بنیادی باتیں نہیں کریں گے کہ وہ شہد کی مکھی ہوتی ہے, وہ ایک کارکن ہوتا ہے, ایک ملکہ ہوتی ہے, ایک نکھٹو ہوتا ہے. نکھٹو پہ گویا تم کیوں مائنڈ کر گئے ہو؟ جی ہاں سر یہ مکھیوں میں بھی ہوتا ہے. بالکل, یہ ایک قبیلے کی شکل میں رہتے ہیں, ایک فیملی بن کے رہتے ہیں. تو
हम मुख्तलिफ इसके एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। आप बताएं, सबसे पहले आप बताएं जुल्फी कि ये जो शहद की मक्खी में से आवाज आती है बजिंग की, ये किस चीज की आवाज होती है? जाहिर है उसने जेब में बांसुरी या हारमोनियम तो नहीं रखा होता। बिल्कुल सर, ये भी जब जुल्फी भी नहा रहा होता है ना तो इसमें से भी यही सेम आवाज आ रही है। सर ये उसके परों की आवाज है। हाँ, उसके परों के फड़फड़ाने की आवाज है और इंसान पागल हो जाता है ये सुन के कि वो कितनी तेजी के साथ फड़फड़ाते हैं। एक सेकंड में 200 मरतबा, एक सेकंड में 200 मरतबा शहद की मक्खी जो है अपने पर फड़फड़ाती है, जिससे ये बजिंग की आवाज पैदा होती है। वाह वाह वाह, ये तो फिर अदनान शमी हो गई ना। उसकी जिस तरह उंगलियां चलती हैं बड़ी तेज कीबोर्ड पे, उसी तरह इसके पर चलते हैं। अदनान शमी कुछ भी नहीं, उससे कहीं ज्यादा। अच्छा बेटा आप बताएं कि मैं तो वहीं फंसा हूँ सेगमेंट के शुरू में, आपने कहा ना प्यारे बच्चों। बेटा खुदा न खासा मैंने आपसे नहीं कहा था, मैंने इधर मुंह करके कहा था। मैंने इस एहतियात को मलूज़े खातर रखा था। सर आप ये कहना छोड़ ही दें प्यारे बच्चों, उसकी फीस बर्बाद हो रही है। वो इस 2 लफ्जों के बाद बेचारा गुम हो जाता है। तलीम की तरफ उसकी तवज्जो ही नहीं रहती, बेचारे की ब्यूटी की तरफ तवज्जो हो जाती है। अच्छा बेटा आप बताइए कि आपके ख्याल में शहद की एक मक्खी अपनी पूरी जिंदगी में कितना शहद बनाती होगी? ये तो उसकी मेहनत पे है ना जी। अगर मलका की बेटी होगी तो वेली रहती होगी। जो अगर किसी मजदूर मक्खी की बेटी होगी तो बेचारी बड़ा शहद बनाती है। वैसे भी जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होता है। अच्छा, बल्कि मुझे इस सवाल से पहले आपको ये बताना चाहिए था कि एक जो शहद की मक्खी है वो एक दिन में 2-2.5 हजार 2000 से लेकर 2500 फूलों का रस चूसती है। ठीक है, और मीलों का सफर तय करती है। और अल्लाह ताला ने उसको ये भी सलाहियत दी है कि वो जितने मील मर्जी दूर निकल जाए, बिल आखिर वो अपने छत्ते पे आती है, अपने छत्ते में अपने सुराख के अंदर जाती है। वाह वाह वाह, मुझे अच्छी तरह याद है सर, जब गुजरांवाला हम रहते थे तो हमारे घर में एक लगा हुआ था शहद का छत्ता। उधर की एक मक्खी रोज हमें बता के जाती थी, मैं ये शहद कट्ठा करावन नाले में डस के अपनी फूफी नु मिल डसका भी हमारे घर से 10-12 किलोमीटर ही दूर होता था। अच्छा, शहद की मक्खी इतनी मेहनत करती है कि अपनी पूरी जिंदगी के दौरान शहद इकट्ठा करने के लिए वो जितना सफर तय करती है, उसकी जो तवालत है वो जमीन का जितना कुतर है उसका 1.5 गुना बनता है। बल्ले 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 बल्ले। और इतनी मेहनत के बावजूद अपनी पूरी जिंदगी के दौरान 1 चम्मच का 12वां हिस्सा शहद पैदा करती है। सिर्फ इतना सा शहद पैदा करती है। आधा किलो शहद बनाने के लिए मुख्तलिफ मक्खियों को 55,000 मील का सफर करना पड़ता है। बल्ले 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 बल्ले। देखो ना, वो वही बात हो गई ना, दान दइए जो लखा च कराती था, फिर जाके कितने फनकार बनता। और 20 लाख फूलों का शहद मिला के आधा किलो शहद बनता है मुश्किल से। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं जी, ऐसे ही तो नहीं ना, फिर ये इतना नायाब शहद तो मिलता ही नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है कि शहद कुर्रा अर्जी पे वाहिद खुराक है जिसके अंदर इंसान को जिंदा रखने के लिए जितने भी रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं, और कोई ऐसी खुराक नहीं है। माशाल्लाह। नहीं, ये तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। शहद के मुतल्लिक तो ना जी बहुत कुछ सुना है इसकी तारीफ में, हकीमों से, बुजुर्गों से, और खुद मक्खी भी बताती है। और मक्खी के बारे में उसकी आंखें कितनी होती हैं गोगा जी? जी मैं कड़ा मक्खी दे नाल रहना जी। तो मक्खी के साथ रह भी नहीं सकते क्योंकि हाथी हमेशा मक्खी से डरता है। तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अफ्रीका के बहुत से मुल्कों में लोगों ने, इंसानी आबादियों ने हाथियों के हमलों से बचने के लिए अपनी बस्तियों के इर्द गिर्द शहद के छत्ते लगाए हुए हैं। सर मेरे से भी बात करें, मेरे कैरियर का मसला है। आप तो अभी तक उसी में नहीं, शहर में मुब्तला प्यारे बच्चों वाले। हाँ, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों। अच्छा जी, शहद की मक्खी के बारे में कहा जाता है कि उसकी 5 आंखें होती हैं, 2 मैदे होते हैं। बल्ले बल्ले। एक मैदे में वो अपनी नॉर्मल खुराक रखती है और दूसरी में वो जो मांग के लाती है वो रखती है।
दूसरी में वो जो फूलों से मांग के रस लाती है ना, वो स्टोर करती है। 2 मैदे जी, मक्खी ना होगी डीप फ्रीजर हो गया जी। गोगे तुमसे तो मक्खी अच्छी है, इतनी सी होती है और उसमें 2 मैदे हैं। तुम पढ़ने आते हैं कि मुझे इरिटेट करने आते हैं? जुल्फी वैसे तुम्हारे लिए फिक्र वाली बात है, तुम मक्खी के फैमिली मेंबर हो और तुम्हारा एक ही मैदा है। एक मक्खी आमतौर पे जब छत्ते से उड़ती है तो वो अपनी एक फ्लाइट या एक दौरे के दौरान 70 से 100 फूलों का रस चूस के वापस लाती है। बल्ले बल्ले बल्ले, बड़ी मेहनत करती है जी। अच्छा, इतनी मेहनत करने के बावजूद शहद की मक्खी रात को सोती नहीं है। हाय हाय हाय, बेवाला साहब। यार, वो अगले दिन के लिए अपनी एनर्जी को बचा के रखती है। सर सारी रात जागती है? सारी रात जागती है। ओहो, 100 करा दी मजबूरियां होंगी। मजबूरी क्या, उसको परेशानी होती है, अगले दिन बिजली का बिल जमा कराता है। दुनिया में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। दोस्त ये कहा करते थे कि ये जब तो जाएगा ना तो तुम मान जाओगे कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, ऐसा हुस्न पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छा। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं। हर सेगमेंट में रोना पिटना ही है ईमान से। जहां तक सुनाओगे वहां तक सुनाए। ये अपना टूरिज्म पे बात करते हैं। हाँ जी। आज मैं ये अपनी हड्ड बीती सुनाना चाहता हूँ। मैं ये कुछ दिन पहले चला गया गिलगित हुंजा सैर करने। अच्छा। मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी, मैंने कमेटी डाली हुई थी, मैंने कहा जब निकली मैं सैर करने। अच्छा, बहुत सारे दोस्त ये कहा करते थे कि ये जब तो जाएगा ना तो तुम मान जाओगे कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, ऐसा हुस्न पूरी दुनिया में नहीं है। नो डाउट, मैंने भी जो देखा है वो ऐसा ही है कि ऐसा हुस्न पूरी दुनिया में नहीं है, मगर बिल्कुल ऐसे ही है कि वो हुस्न बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। ईमान से जुनैद, इतना दुख हुआ है मुझे सैर करके। मुझे ऐसे लगा है कि उस खित्ते के अंदर अरबों रुपया जाया हो रहा है। जहां तक रब ने मेहरबानी की हुई है उसने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी रहमत। अपना हुस्न लाजवाब अल्लाह पाक ने बख्शा पाकिस्तान को, मगर जहां तक उस हुस्न को बेकार करने की कोशिश है उसमें भी पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं हैरान हो गया हूं कि आप सैकड़ों मील का सफर करके आप घंटों का ड्राइव के बाद कहीं पहुंचते हैं। हाँ जी। लैटरीन नहीं है किसी जगह पे भी। हाय 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 हाय, टूरिस्ट जो है, बतौर टूरिस्ट मैं समझता हूँ, या शायद मेरी उम्र इस लड़कपन में है शायद, इसलिए सोचता हूँ कि जब आप कहीं जाते हैं किसी जगह पे 3-4 घंटे गाड़ी में बैठने के बाद जब आप उतरते हैं, हुंजराब उतरते हैं या हुंजा उतरते हैं या गिलगित पहुंचते हैं, तो सबसे पहला काम सवारियां ये कहती हैं कि यार मैं बाथरूम से। इसी जगह पे कोई पब्लिक प्लेस को पब्लिक लैटरीन ऐसी नहीं बनी हुई जहां पे उतर के कोई बाइज्जत तरीके से बाथरूम से हो। सबसे पहली गल। दूसरी गल सुनो, मैं हैरान हो गया हूं, वहां पे हुंजा में एक बड़ा खूबसूरत स्पॉट है जिसे ईगल्स नेस्ट कहते हैं। वहां पे वो टॉप है पहाड़ी का, उधर सनसेट और सनराइज का मंजर गोरे बड़ी बड़ी दूर से यूरोप से, अमेरिका से, इंग्लैंड से देखने के लिए आते हैं और कई दहाइयों से आ रहे हैं। अच्छा। वहां पे जो सबसे पुराना होटल है ना, उसके जो ऑनर हैं बाबा जी रहे थे अय्यी टैब अली मदद साहब, मैंने उनके पास बैठ के सारी स्टोरी सुनी। बड़ी ही हौलनाक कहानी है। वो कहती है जी मैं एक फौजी रिटायर आदमी हूँ, मस्कीन बंदा, मैं इधर हमारी जगह थी पुरानी गांव में, मैं एक दफा मैंने क्या देखा कि इधर सनराइज सनसेट देखने के लिए ना जी 2 इटालियन खवातीन आई हुई थी। अच्छा। मैंने उनसे जाके कहा कि आपने यहाँ पे अपना सनसेट तो देख लिया है, सनराइज के लिए अगर आप यहाँ सुबह तक बैठी रहेंगी तो 4 बजे के बाद इधर बड़ी ठंड हो जाती है। वो गोरी खवातीन कहने लगी कि हम तो आई इस काम के लिए। कहते हैं मैंने जाके घर से 2 कंबल ला के उन्हें दे दिए।
दो कहते हैं वो खवातीन ने मुझे कहा कि तुम इधर को ऐसा बंदोबस्त क्यों नहीं कर लेते कि टूरिस्ट आके तो इधर कयाम Stay कर करें, सके। हाँ। वो कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने कहा यहाँ टेंट लगा लो। वो भाई साहब ने टेंट से वहां काम शुरू किया। अब उनका वहां पे बहुत बड़ा होटल है। अच्छा। वो कहते हैं ये 9/11 से पहले इधर 100% गोरा आता था। अब यहाँ पे पाकिस्तानी हमारे आने शुरू हुए हैं। दोनों का फर्क जो 3 उन्होंने बताए हैं, मैं हैरान हो गया। कहते हैं यहाँ पे नीचे फर्शी बिस्तरों पे भी मैं जिन लोगों को सिलाता था ना, हाँ जी, वो लोग, वो गोरे जो थे, 100 रुपया मुझे एक बंदा देता था। मैं कहता चल टेंट चिबाड़ते सौ जा। कहते जी वो लोग जो थे वो सफाई का इतना ख्याल रखते थे कि ऐसे लगता था कि कोई सुबह सारे इलाके को साफ करके गया। किसी जगह पे एक रैपर, कोई सिगरेट का टुकड़ा कभी नजर नहीं था। कहते हैं अब पाकिस्तानी जब से आना शुरू हुए हैं, गांधी गांधे पहाड़ा दे उत्ते। अच्छा, ये जो गोरे की तरबियत ही इस तरह की है कि वैसे भी पब्लिक प्लेस पे कोई गंद फैलाने से वो उसको बहुत बुरी बात समझते हैं, लेकिन किसी सयाहती मकाम पे जाके इस तरह कोई कैन फेंक देना, कोई रैपर फेंक देना, वो उसको गुनाह समझते हैं। यार वो कहते हैं कि अब पहाड़ों के ऊपर जो चीज फेंकी जाती है उसे ना झाड़ू मारा जा सकता है, ना मशीन पहुंचा वो नहीं जा कहते सकता। हैं कि हमारी अपनी खवातीन हर हफ्ते थैले और वो चादरें लेके निकलती हैं और सारे इलाके से गंद उठा के ले। मैंने कहा जी क्यों, आप तो माशाल्लाह इतने तगड़े आदमी। वो कहते हैं जी हम नहीं साफ करेंगे तो फिर यहाँ पे वो हालत हो जाएगी साल के अंदर कि हम यहाँ पे रह नहीं सकेंगे। यहाँ गवर्नमेंट तो कोई तवज्जो नहीं देती, हम तो खुद, हमें तो करना है क्योंकि हमने इधर रहना है। दूसरी बात वो कहते हैं कि जब गोरा आता था तो रात को सूरज गुरूब होने के बाद कुछ देर बाद सब सुकून से सो जाते थे, सुबह सुबह उठ के सैर शुरू करते थे। अब जो लोग आते हैं कहते हैं 50% अपने बैगों में शराबों की बोतलें लेके रात को वो बोलते हैं, वो रौला डालते हैं, वो गंद डालते हैं, वो वायलेशन होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तीसरी चीज जो उन्होंने बताई वो तो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा रंजीदा कर देने वाली थी जी। कहते हैं भाई जी जो गोरे यहाँ पे आते थे ना, हाँ जी, वो बाकायदा ऐसे हर चीज का, हर पौधे का, हर फ्रूट के दरख्त का ख्याल रखते थे जैसे ये उनकी अपनी जगह। अब कहते हैं जो लोग आते हैं वो ये पता ही नहीं उनको होता, वो ऐसे लगता है कि ये किसी टेम्परेरी चीज को देख रहे हैं कि ये टेम्परेरी है, बस इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। कोई हिफाजत नहीं है, कोई किसी चीज को देखता नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा, इसमें जो बहुत ही अफसोसनाक बात है ना वो ये है कि जो इंतहाई ये जो चाइना वालों ने बनाई है सड़क हमारी, शायरा कराक्रम इसे कहते हैं ना, जो खुंजराब तक जाती है, वो तो उन्होंने बना दी है। सड़क मेन तो बहुत प्यारी अब बन गई है। उधर से उतर के आप किसी भी अपना सैरगाह की तरफ जाएं, अताबाद झील की तरफ जाएं, अपना नलतर की तरफ जाएं, किसी जगह भी जाएं, वो मेन सड़क से उतर के बर्बाद हुई हैं सड़कें। कोई ना उधर गड्डी चल सकती है सलीके से, ना उधर आप आसानी से पहुंच सकते हैं, ना कोई वहां पे कोई आपको मस्जिदें नजर आती हैं, ना कोई बाथरूम नजर आते हैं, ना कोई कंटीन वगैरह या होटल्स बने हुए नजर आते हैं। ये गवर्नमेंट का काम होता है। आप देखें ना, ये मोटरवे बनी है मुल्तान वाली, इस पे अभी तक सर्विस वगैरह नहीं चालू हुई, पेट्रोल पंप वगैरह, वहां पे लोग जाते हुए बड़ा सख्त घबरा रहे होते हैं और हर बंदा चीख रहा होता है। हाँ जी, बिल्कुल। इसी तरह जब टूरिस्ट किसी जगह पे जाता है तो उसको ये बुनियादी सहूलतें चाहिए होती है। बिल्कुल। और हम टूरिज्म का हर हुकूमत, पिछली हुकूमत ने भी, नून लीग की हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की, सब ने बड़ी कुगियां गाई हैं, बड़ी घोड़ियां गाई हैं, टूरिज्म टूरिज्म टूरिज्म। ये हुकूमत भी उसी तरह कर रही है, रौला डाल रही है, टूरिज्म टूरिज्म टूरिज्म। एक टके का काम नहीं किसी ने भी किया टूरिज्म के लिए। बहरहाल ईमान से अगर थोड़ा सा वहां पे पैसा लगाया जाए, तवज्जो दी जाए, तो वाकई अल्लाह ताला की बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी देन है उसकी सफाई सुथराई का। वहां के लोगों के साथ हेल्प करके बड़े तरीके के साथ, सलीके के साथ वहां रहा जाए और चला फिरा जाए, सैर की जाए, तो ये अल्लाह ताला की एक बड़ी बड़ी नेमत है। बिल्कुल। नाज़रीन, ये सब कुछ था ऐन हस्बे हाल, और चलते चलते एक छोटी सी बात ये कि खुद को समझदार समझने की समझदारी करना हो सकता है हमारा हक हो, लेकिन दूसरों को
बेवकूफ समझने की बेवकूफी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।